I would like to wish you on this particular day, second class of computer. I will give you basic information about this lesson. Let us start. RAM, random access memory. Examples of RAM are blackboard, DRAM, DIMM and calculator. Full form of DRAM, dynamic random access memory. Full form of DIMM, dual inline memory module. RAM is volatile memory. Its data and information remains inside the computer till you are working. When you switched off your computer, its all information will delete permanently. While ROM, read-only memory, is such a memory. It can store data permanently, or you can check your data after switching off your computer. Examples of ROM are an audio video disc, CD जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, एंड EEP ROM, full form of EEP ROM, electrically erasable programmable read only memory. External memory, when data transferred from secondary memory to primary memory. As you know, whenever data is in excess or you wanna to store your information for further use, for that purpose we have to take the help of internal memory. आपको पता है जब आपको कुछ चीज़ें सेव करनी है और उसका यूज आपको भविष्य में करना हो तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल मेमोरी का प्रयोग करना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपके इसमें डेटा आवश्यकता से ज़्यादा आ जाता है तो उसको भी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक्सटर्नल मेमोरी का सहायता लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी आर हार्ड डिस्क, CD, DVD। DVD को आप डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोलते हैं, एंड पेन ड्राइव्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बिट। जो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है उसे आप बिट कहते हैं। सम अदर यूनिट ऑफ मेमोरी आर निब्बल। निब्बल जो कि 4 यूनिट्स के बराबर होता है। बाइट जो कि आपका 8 बिट्स के बराबर होता है, एंड सो ऑन। बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर 1 और 0। बिट को आप 1 या 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल कंप्यूटर, पीसी को पर्सनल कंप्यूटर, टाइपिंग कीपैड
आपका जो टाइपराइटर होता है, जिसे कि आप इनपुट डिवाइस के तौर से जानते हैं इन कंप्यूटर में, इसमें कुछ स्पेशल सिस्टम होता है. With the help of them you can work through this कीबोर्ड. जो टाइपिंग की है उसे आप A to Z तक की इसे आप टाइपिंग की के नाम से जानते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल कैरेक्टर सिंबल्स फ्रॉम A to Z. Numerical keypads are from 0 to 9, जिसे आप अर्थमेटिक लॉजिकल वर्क करते हैं उसे आप न्यूमेरिकल कीपैड्स बोलते हैं. उसे 0 से लेकर 9 तक मानी जाती है. फंक्शन कीज जो कि टोटल 12 होती है. These are from F1 to F12. All these keys are available on your keyboard which is connected to your computer. Editing keypads are insert, delete, backspace, page up and down keys. Mouse. What is mouse? Is an input and pointing device. The left button can open the application while right button can display a list of commands on the screen. माउस जो कि इनपुट डिवाइस माना जाता है, इसके 2 साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड. विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट बटन आप किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट करके उसे खोल सकते हैं, जबकि राइट बटन से आप you can display a list of commands on the screen. और राइट बटन से जो क्या कर सकते हो आप you can display a list of commands on the screen. और जो राइट बटन होता है उसकी हेल्प से आप किसी भी लिस्ट का कमांड दे सकते हैं. प्रिंटर्स आर 2 टाइप्स. प्रिंटर्स 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो किसी भी डाटा को उनके वायर्स और लाइन को टच करता है और उस पे फिर स्याही पड़ गई उसको प्रिंट आउट करता है. जबकि जो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, it takes only the help of ink and it can print the data better than impact printers. The example of impact printers are Deshi bill printers, dot matrix printers, and so on. Example of non-impact printers are thermal printers, inkjet printers, laser printers, and solid printer. A joystick, it is an input device, is a principal control device in cockpit of many civilian and military aircraft. जो ये जॉयस्टिक होती है इसको आप मिलिट्री या अदर्स जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं. इट हैज़
switches to control various aspects of the एयरक्राफ्ट्स। इनके इसमें स्विच लगे रहते हैं जो एयरक्राफ्ट्स में जो अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन वीडियो पार्लर फॉर प्लेइंग गेम। जो वीडियो पार्लर्स होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एक जो OCR होता है वो किसी भी जो आपका डेटा कोई पेज में किसी पेज में लिखा रहता है, किसी पेपर में लिखा रहता है, उसको कॉपी करके वो जो है कंप्यूटर में डालता है और उसको आप एडिट करके या उसको सेव कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू रीड कैरेक्टर फ्रॉम ए प्रिंटेड पेपर इनटू PC। OCR systems are made of a combination of hardware and software that is used to convert physical documents into machine readable text। जब को आप मैंने अभी तक बोला ही था कि जो भी कुछ चीज़ आपके पेपर या शीट पर लिखी रहती है उसको वो ट्रांसफर कर देता है, कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर में। अब है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इट इज़ यूज बाय बैंकिंग इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। चेक की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रीड करने के लिए आप MICR का प्रयोग करते हैं। लाइट पेन। इट इज़ ए लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू सेलेक्ट मॉडिफाइड टेक्स्ट और डेटा ऑन स्क्रीन। जो लाइट पेन होता है इसका प्रयोग जब आप किसी चीज़ को आप बोर्ड में लिखते हो या आप कंप्यूटर के द्वारा कोई चीज़ इंफॉर्मेशन पढ़ाते हो तो उसमें जो आप एडिटिंग करते हो, कोई शब्द आपको चेंज करना हो, उसको मॉडिफाई करने के लिए आप जो है लाइट पेन का प्रयोग करते हैं। बारकोड रीडर। इट रीड्स बारकोड्स ऑन वेरियस सरफेसेज। जो बारकोड होता है जैसे कि आपको कोई भी आइटम होती है कंपनी की, उनमें बारकोड दिया रहता है, उसको रीड करने के लिए आप बारकोड रीडर का प्रयोग करते हैं। बारकोड रीडर्स आर वेरी यूजफुल फॉर बिलिंग एंड इन्वेंट्री एप्लीकेशंस। जो बारकोड रीडर होता है वो बिलिंग करने में भी सहायक होता है कि कोई भी जो पाउच होता है या कोई बुक होती है, नोटबुक होती है, उसमें जो बारकोड दिया रहता है उसको रीड करके ये बिल बनाने में सहायक होता है। एंड इट कैन वर्क on other applications. I hope I have covered the topic with the best of my ability. Thank you for your kind of cooperation.